Hello children, this is online class and I am your English teacher. Today I am going to discuss of your lesson, that is lesson 9. The title of the lesson is A Dog from Nowhere of your English course book, New Learning to Communicate, Oxford University Press. Children, this lesson is very thoughtful, and in this story, in this lesson, you learn that how an animal, dog, can feel the human heart. How did the unknown dog, that is written here and addressed here as Goldie, could realize the human feeling, the feeling of Mr. Jones? Okay, student, and let's start this story now. And you, the class 5 students, and this is your book, New Learning to Communicate, of lesson 9. Again I am telling it, the lesson 9, A Dog from Nowhere. Now let's start. Just in brief, I just tell the story so that you will understand it very easily, and you must read line by line the story. And now in this video you will get the question answers and other exercises, and the rest exercises you will get in the description box. Okay students, as I provide you in the previous videos, like that. Okay, you see in the story that beginning of the story is like that. Mr. Jones worked in a same office for a long days, 35 years. Okay student, children, मिस्टर जून्स एक आदमी, और जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, मिस्टर जून्स सेम ऑफिस में, एक ही ऑफिस में लगातार 35 इयर्स तक काम किए थे, और उनका सर्विस पीरियड 35 इयर्स का था. नाउ ही इज़ 65, यू कैन अंडरस्टैंड. एंड आफ्टर ऑल ही गॉट द रिटायरमेंट, एंड द वर्क वॉज क्वाइट बोरिंग, यू कैन से. एक ही ऐसा काम, जैसे कि आप देखते होंगे ना स्कूल में, अगर आपको रोज़ पढ़ाया जाए, ये टीचिंग प्रोसेस अगर रोज़ चलते रहा है तो क्या होता है, आप बोरिंग फील करते हो. सो दैट यू हैव सीन दैट you have a lot of experience of the school life, that you participate in several programs like co-curricular activities, dance, song, poem recitation, sports, and you take part in annual function, and then 15th August. There are so many cultural activities, and the children participate there. तो ये पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो मोनोटोनस लाइफ है, लगातार केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसमें कुछ ब्रेक हो, आपको रिफ्रेश मिले. एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होता है हर आदमी का ज़िंदगी में. तो मिस्टर जून्स का भी एक लाइफ ये बहुत मोनोटोनस था. 35 इयर्स उन्होंने एक ही ऑफिस में बिताए, एक ही काम, सेम वर्क, सेम चेयर, सेम ऑफिस, एंड in the office and out of the office the same work, just like a machine he did all the things. मशीन की तरह उन्होंने ये सभी काम लगातार करते गए. बोरिंग होते थे, लेकिन बस दैट वाज द ड्यूटी, यू कैन से दैट इज़ द सर्विस. ये तो भाई नौकरी है, सर्विस है, उन्हें करना ही था. आफ्टर द रिटायरमेंट इन 65 ईयर्स, नाउ ही रियलाइज्ड हिज ड्रीम. अपना सपना के बारे में उन्हें याद आया. मैं तो ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहता था. मैं चाहता था ऐसा ही मेरा एक घर हो, चारों तरफ ग्रीनरी हो, एक बागान हो, देयर शुड बी ए गार्डन, एंड आई विल हैव ए डॉग with us. Or before that, just I am telling you that unfortunately Mr. Jones and Mrs. Jones, they had their only one son, and they
tragically you can say they lost their son. Okay, once Mr. Jones told it that he lost his son when the ship sank in the sea. समुद्र में जहाज़ डूबने के कारण में उनका एकलौता जो पुत्र था, बेटा था उनका, वो डूब गए थे. Okay, unfortunately they lost their only one son and that was the tragedy of their life and they were very alone. That is the plot, students. And now they purchased a farm, big farm and a cottage there in the countryside. एक विलेज एरिया में उन्होंने घर बनाए और वहाँ पर एक छोटा सा एक घर और एक बागान, बड़ा सा बागान, एक गार्डन, एक बिग फार्म, orchard means you know that the fruit trees, okay, the garden of the fruit trees, जहाँ पर फल की पेड़ हो, बहुत सारा फल की बागान को हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं. they had an orchard. That was their life, very peaceful life of the natural life and nature enjoying life, you can say. They enjoyed the squirrel, the flock of birds flying in the sky. ये सभी देखकर उन लोगों का दिन बीतता था. But in his mind, you can say Mr. Jones, that he had a wish to keep a dog, a fox terrier dog. Okay, that is the species. लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था ऐसा डॉग खरीदने का. मन में इनका तमन्ना ऐसा था. स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल देखो भगवान का क्या करिश्मा है. In the beautiful morning, one day, a dog came to his home, his house. उनके घर में एक ऐसे अननोन डॉग, जिनका कोई मालिक नहीं हो. मालिक तो जरूर होगा लेकिन उन्हें पता नहीं है. आ गए, arrived, okay, and they called him as Goldie. गोल्डी नाम से पुकारने लगे और मिस्टर जोन्स को साथ बहुत उनका दोस्ती हो गया. kept putting, and after that मिस्टर जोन्स मन में सोचने लगा कि डॉग तो जरूर किसी का ना किसी का होगा ही. The title of the story, you see that is a dog from nowhere, but you know that ऐसा डॉग जरूर किसी ना किसी का तो जरूर होता है. Okay, but here is the title, you see, a dog from nowhere. It has a meaning. At the end of the story you will find it. Mr. Jones knew he should advertise but kept putting it off. मिस्टर जोन्स जानते थे जरूर इसका कोई मालिक तो होगा, ओनर तो होगा, उन्हें एडवर्टाइज भी करना चाहिए, पेपर में देना चाहिए, ये ईमानदारी है. लेकिन उनका मन में एक कहो, दैट इज द सेल्फिशनेस कहो, टेंडरनेस कहो, या लव एंड अफेक्शन टू दिस डॉग. इस डॉग के प्रति उनका प्यार कहो, अपना अटैचमेंट कहो, या तो सेल्फिशनेस कहो. उनका मन था जो नहीं एडवर्टाइज देंगे, हो सके इसका रियल ओनर आ जाएगा फिर इसे लेके चला जाएगा. So that he kept putting it off. But his wife, Mrs. Jones, advised no, we should advertise. हमें एडवर्टाइज देना चाहिए, हमें एडवर्टाइज करना चाहिए ताकि इसका रियल ओनर को इसका डॉग मिल जाए. ऐसा ही ईमानदारी की बात, ऑनेस्टी की बात करती है मिसेस जोन्स. एंड आफ्टर दैट मिस्टर जोन्स फेल्ट ए वेरी गिल्टी एंड असेम्ड. अगला दिन पेपर पर, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं. एंड 1 वीक पास्ट अवे, मीन्स दैट 3 वीक्स के बाद एडवर्टाइज दिया गया. और 1 वीक के बाद एक जेंटलमैन, टॉल, 6 feet 2 inches high, a tall man, he came. Both of the persons, Mr. Jones and Mrs. Jones, they served a lot to him, and that man, that young gentleman,
you can say he was very funny man, and he was a tall personality, and he ate a lot of food, and they brought all the fruits from their garden, and they served a lot of food from their homemade food, घर का बना हुआ खाना, homemade food. ये स्ट्रेंजर उस यंग मैन को बहुत अच्छा से हॉस्पिटैलिटी के साथ ऐसा ही अच्छा से इज्जत किए. ओके, देयर हॉस्पिटैलिटी वाज वेरी well, and that was very remarkable, and he ate up a lot of food. And after all, one line is that humorously that man told that if I stayed with you long, I would have a big tummy. Mr. Jones, मुझे लगता है आप लोगों के साथ मैं कुछ दिन रह जाऊंगा तो मैं तो बहुत मोटा हो जाऊंगा, बड़ा सा मेरा पेट हो जाएगा, बिग टमी. ओके, दैट इज द फनी थिंग. ओके, एंड आफ्टर ऑल नाउ कम टू द पॉइंट. मिस्टर जून्स का मन में तो था अब तो इसका रियल मालिक आ चुका है. नाउ आई विल लॉस माई डॉग टू whom I loved. आफ्टर ऑल वो यंग मैन बताने लगे. ही डिस्क्राइब्ड his incident, how did he miss his dog, कैसे उनका डॉग को उन्होंने खोया. he had a flat tire driving through this part of the countryside. इसी एरिया में, इसी विलेज एरिया में एक फ्लैट टायर उनके साथ हुआ था. फ्लैट टायर मीन्स यू नो दैट स्टूडेंट, दैट आप भी साइकिलिंग करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कभी कभी देखते हो ना साइकिल में पंक्चर हो जाता है और हवा निकल जाता है, और उसके बाद साइकिल कितने ही का हो, कितने अच्छा हो, गाड़ी कितना हो अच्छा हो, इसके बाद तो आपके पास कोई उपाय नहीं रहता है. दैट इज़ द फ्लैट टायर. ओके, कोई ना कारण में, कोई किसी न किसी कारण में जब हम गाड़ी में टायर में जब हवा निकल जाती है, और दैट इज आफ्टर ऑल यू नो दैट यू हैव टू कॉल द मैकेनिक. ओके, या तो टायर खुल के आप मैकेनिक के पास ले जाते हो, फिर उसको रिपेयरिंग करा के लाते हो. तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था. ड्यूरिंग दिस पीरियड when he went to call a mechanic, during this period his dog went away somewhere. कहीं ना कहीं भाग गया, चला गया. After all, he got that advertisement and he came here. Okay, मिस्टर जून्स को तो ये फीलिंग होने लगा जब उनका प्यारा सा कुत्ता जिसे इतना दिन से रखा था अब वो चला जाएगा. Just in this time that dog came. उन्होंने बताए, प्लीज कॉल हिम बाय हिज नेम एंड लेट हिम रिकॉग्नाइज यू. ऐसा कीजिए ना, आप अपना डॉग का नाम से पुकारिए ना, बोलिए, कॉल कीजिए, जरूर आपका होगा तो जरूर आ जाएगा. Just in this time the dog came. The dog started quickly towards the tall man, then stopped and looked at Mr. Jones. देखो, दैट इज द फीलिंग स्टूडेंट्स. डॉग बेचारा आया और उसका मास्टर, रियल मास्टर, ऐसा लगता है यही रियल मास्टर है, स्ट्रेंजर की तरफ देखा गया, लेकिन फिर मिस्टर जून्स के पास आ जाता है. यू सी दिस फिगर. दैट इज द ब्यूटीफुल स्टोरी स्टूडेंट्स. दैट इज द रियल फीलिंग. सी दैट. और मिस्टर जून्स के पास आकर द डॉग लिक्ड हिज हैंड. जैसे आप देखे होंगे आपके घर में पेट डॉग होगा तो ऐसा ही करता होगा. एंड आफ्टर ऑल द डॉग वॉज परप्लेस्ड टू वॉच दिस सीन. यू सी दैट यंग मैन इज ऑल्सो सेंसिटिव एंड वेरी काइंड मैन. आई थिंक सो. मुझे लगता है ये यंग मैन बहुत काइंड था और एक काइंड हार्टेड पर्सन था. ही रियलाइज्ड द फीलिंग ऑफ मिस्टर जून्स एंड द डॉग. उन्हें एहसास हो गया अगर रियली मैं इस डॉग को लेके चला जाऊंगा तो इन लोग बहुत अकेला पड़ जाएगा.
उन्हें इन लोगों के प्रति एक सिंपैथी आया। देन एंड देयर उनके मन में एक बात आई और कहते हैं क्या, देयर इज ए रिसेम्बलेंस, दैट इज द रिसेम्बलेंस, ए रिमार्केबल रिसेम्बलेंस। ये तो मुझे लगता है बहुत बहुत गजब सा एक समानता है मिस्टर जोन्स। मेरा जो डॉग है ना ऐसा ही है। ये डॉग तो ऐसा होता है, बट डॉग्स ऑफन लुक लाइक, ऐसे ही होता है। देखो पूरा बात को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंटेशन किए ताकि उन्हें पता ही नहीं चले। देखो ये जेंटलमैन का ऐसा ही होता है। जो अच्छे आदमी होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसा ही होता है, वो सेल्फिश नहीं होते हैं। एंड आफ्टर ऑल व्हाट डिड ही डू, ही कॉल्ड द नेम, जस्ट द नेम विल टेल हियर चीफ। ही कॉल्ड सॉफ्टली, बहुत धीरे से चीफ करके बोल, ताकि ये डुप्लीकेट नेम है स्टूडेंट्स, चीफ उनका नाम नहीं था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल सी दैट द नेम और द रियल नेम ऑफ दिस डॉग वाज हैप्पी, लेकिन हैप्पी नाम से उन्होंने उसको कॉल नहीं किए क्योंकि वो यंग मैन सोच लिए थे। और वन थिंग इज दैट यू सी दैट आई जस्ट हैव फॉरगॉट टू टेल यू दैट यंग मैन हैज़ ओनली वन हैंड। आप देखो उनका कोट को देखो तो आपको ज़रूर आपको मालूम होगा इस यंग मैन का एक ही हाथ था। अनफॉर्चुनेटली देयर would be any reason that is not discussed and written in this story, but we imagine it, we suppose it, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही होगा। कोई कारण में उनका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है। आप कोट को देखो। ओके, तो that was the thing students, but that is very, he was a very kind hearted man। और देखो तुरंत अपना बात को दूसरा बात में ले आए और बोले जी नहीं नहीं ये मेरा डॉग नहीं है, नॉट माई डॉग, इट इज़ नॉट माई डॉग, सेड द टॉल मैन। ही थैंक्ड मिस्टर एंड मिसेज जोन्स फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। इनकी इतना जो सेवा किए थे ना, हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा खिलाए पिलाए थे और उनका वेलकम से बहुत खुश हुए और उन लोगों को बहुत थैंक्स किए, धन्यवाद दिए और लेफ्ट इन ए हरी, लेफ्ट इन ए हरी, that is the word is used in this story you see in the picture, left in a hurry, जल्दी जल्दी चले गए। मन में सोचने लगे हो सके वो डॉग फिर से मुझे पहचान ले, रिकॉग्नाइज कर ले और मेरे साथ चले जाएंगे तो ये बेचारा लोग अकेला पड़ जाएगा। मन में दुख लगेगा इन लोगों का। इसलिए कहा जाता है दूसरे को दुख देना ही पाप है और दूसरे को सुख देना ही पुण्य है। पाप और पुण्य यही है स्टूडेंट्स। Very beautiful story. In this book of Oxford University Press, I really thank this publication to publish and provide such a good story. I really thank. Students, after that you see, they were very happy. Mr. Jones and Mrs. Jones were very happy. वाह, चलो अच्छा हुआ, चलो रियल मालिक तो आया नहीं, चलो ये डॉग अब हम ही लोग के साथ ही रहेगा। After that you see the problem now is to find his real name, Mr. Jones told his wife. अच्छा बताओ ये तो ठीक है लेकिन इस डॉग का रियल नेम क्या है? After some days they received a telegram. उस ज़माने की बात है, एक टेलीग्राम आया और टेलीग्राम बहुत दूर शहर से आया। What was the telegram? And it was written only, टेलीग्राम में आप जानते होंगे बहुत कम शब्द होते हैं। Try happy. So that we come to know the real name of this dog was Happy. Okay students, that is the story students. Now let's start the question answers part so that for your examination that will be helpful to you. Let's read and find facts. You see that is the MCQ part. You can say which of the following words describe the fox, that dog, the fox terrier. Okay, that bushy tail, honey colored, clever or curious. Okay students, after all you see, did the dog come from, that is nowhere. nowhere हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे स्टोरी में इसके बारे में क्लियर नहीं है। ओके, nowhere. After that is the question number 3,
You can find from the book. The answer is important. Mr. Jones had worked in a city office as a clerk for 35 years, and it was not interesting. It was boring to him because he used to work in the same office, on the same chair, and did the same thing day in and day out. Students, you can take the screenshot so that the video will not be longer. वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं ले जाना चाहते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. क्वेश्चन और आंसर्स बोथ आर अवेलेबल. ओके, एंड द रेस्ट पार्ट I will provide you in the description box. They are the question answers of the let's read and find facts, students. More questions are there, so that will be helpful to you, that you will take the screenshot and you can pause the video and write, क्योंकि वन बाय वन अगर हम इसको रीड करें तो काफ़ी समय आपका जाएगा, तो ये टाइम टेकिंग है. सो दैट यू विल राइट बाय स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो. इसको पॉज करके भी आप लिख सकते हो. रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द पार्ट 1. नाउ लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स. They are also important. Okay, answers and questions are given there. मैंने अभी कहा था, why do you think he kept putting off listening the advertisement? The answer is there. Okay, that is 4. Very slowly I just display so that you can write. I hope so that you have understood the complete story and the kindness of a man and the dog, attachment, love and affection, all the things you have felt. Okay students, in our practical life also we follow such. Okay, goodbye students. The rest part you will get in the description box. Goodbye.